الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں پرکھا جا سکے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے بھی پتہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اور ہمارے ساتھ رہنے والے لوگوں پر یہ واضح کرنے کے لیے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ قرآن پاک نے جو ترتیب عطا فرمائی وہ ترتیب یہ ہے کہ الذی خلق الموت، وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور جس نے زندگی کو پیدا فرمایا۔ ترتیب دیکھیے گا، اللہ کریم نے موت کا ذکر پہلے فرمایا ہے، حیات کا ذکر بعد میں فرمایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، کس لیے؟ لیبلوکم، تاکہ پرکھا جا سکے، ایکم احسن عملا، یہ نہیں کہا کہ تم میں عمل کون کرتا ہے، تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ حسین بھی نہیں کہا، حسن والا بھی نہیں کہا، احسن عمل فرمایا۔ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے۔ تم میں سے بہترین عمل، ہماری جو اچھی انڈسٹری ہوتی ہے نا، اچھی انڈسٹری، اس نے اپنی اچھی پروڈکشن چیک کرنے کے لیے علیحدہ سے کچھ لوگ بٹھائے ہوتے ہیں جو کوالٹی چیک کرتے ہیں، پھر وہ کوالٹیاں بناتے ہیں، یہ اچھی ہے، یہ بہت اچھی ہے، یہ اس سے بھی اچھی ہے۔ تو کوالٹی چیک کرنے کے لیے باقاعدہ لوگ بٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہاری کوالٹی چیک کرنے کے لیے تمہیں زندگی اور موت عطا فرمائی ہے۔ اچھے عمل کون کرتا ہے؟ تم میں سے اچھا کردار کس کا ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے، یا میری طرح جس نے اچھی پگڑی باندھ لی، داڑھی رکھ لی، وہ اب مکمل ہو گیا۔ نہیں، اس کو چاہیے کہ اپنی تربیت پر توجہ دے۔ ہمارے جو محکمے ہیں نا، ہمارے محکموں میں ریفریشر کورس کرائے جاتے ہیں کہ پھر سے فریش ہو جائے کہ تمہاری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ کرائے جاتے ہیں نا، فریش کرنے کے لیے کورسز کرائے جاتے ہیں تاکہ پھر سے پتہ چل جائے۔ ہم لوگ اپنی ترقی روک لیتے ہیں، بالخصوص جو میری طرح کا شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب میں بہت زیادہ نیک ہو گیا ہوں۔ دیکھ کے تو صحیح نا، قمر صاحب کتنی میری تعریفیں کر رہے ہیں، اب میں نیک ہوں تو اسی لیے کر رہے ہیں نا۔ ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا ہے، حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درویش تھے اور بہت سارے فقہاء کے استاد تھے۔ ایک شخص نے دعوت پکائی ان کی، کہا حضرت جی فلان دن کو فلان تاریخ کو میرے گھر آئیے گا۔ حضرت صاحب چلے گئے۔ جب اس کے دروازے پہ پہنچے تو دروازے پہ دستک دی، وہ شخص باہر آیا، کہنے لگا اوہو میں تو بھول ہی گیا تھا آج آپ کی دعوت پکائی ہے، غلطی ہو گئی حضرت صاحب، یاد ہی نہیں رہا۔ اب صحیح بات کیجئے گا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، کوئی میرے اور آپ کے ساتھ ایسے کرے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں نا میں بڑا عاجز سا سادہ سا، جی میں بڑا درویش آدمی، کرے ہیں کوئی بھلا، دعوت پکائے، ٹائم لے کے جائے اور پھر کہے کہ میں بھول گیا تھا۔ میری طرح کے بندے تو بگڑ جاتے ہیں کہ تم چوک میں لینے کیوں نہیں آئے، تم نے نعرہ ہی کوئی نہیں لگایا، تمہیں پتہ نہیں مہمان کو کیسے بلایا جاتا ہے۔ لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ کہنے لگا جی مجھے نہیں یاد رہا کہ آپ کو بھول گیا تھا۔ تو حضرت صاحب نے کیا فرمایا، ہزاروں لوگوں کے استاد تھے، کیا انداز ہے، کیا رنگ ہے، کیا اللہ نے ان لوگوں کو نوازا ہے۔ فرمایا احسن عمل والے لوگ دیکھو میں نے اچھے اعمال پرکھنے کے لیے تمہیں پیدا کیا۔ فرمانے لگے یار کوئی بات نہیں، بندہ بھول بھی تو جاتا ہی ہے، انسان جو ہوا کوئی عرض نہیں، پھر کبھی آ جائیں گے۔ حضرت صاحب دوڑ کے گئے، واپس چوک میں پہنچے تو بندہ پھر پیچھے گیا، کہنے لگا حضور چلو اب آپ آ ہی گئے ہیں تو ذرا واپس آ جائیں، میں دیکھتا ہوں شاید کوئی گھر میں چیز پڑی ہو تو آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت صاحب دوبارہ آ گئے۔ میں نے کہا کہ یہ باتیں کرنی آسان ہے، سننی آسان ہے،
लेकिन जरा अपने आप को वहां खड़ा करके देखे ना, दोबारा आ गए। मैं तो कभी ना दोबारा आता, मैं तो कहता यार जा काम कर, देखी जाएगी। चलो कहता कुछ ना, लेकिन अंदर गुस्से से शायद लाल पीला हो जाता कि अकल ही कोई नहीं बुलाने, जा दौड़ जा, मैं नहीं आता। हजरत साहब दोबारा आ गए, हाय आके खड़े हुए, कहने लगा आप यहाँ खड़े हो, मैं जरा पता करता हूँ, शायद कुछ चीज पड़ी हो। अंदर गया तो वापस आके कहने लगा हुजूर माफ करना, कोई शय भी नहीं। फिर चले गए। चौक में गए तो फिर बुलाने चला गया, कहने लगा मेहरबानी करें वापस आ जाएं, अचार मिल गया है। उसने सिरका कहा था, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। कहने लगा जी वो अचार मिल गया, थोड़ा सा आ जाएं। हजरत साहब फिर आ गए। तीसरी बार आए तो कहने लगा हुजूर माफ करना, वो तो खराब हो गया, तो खाने के काबिल ही नहीं। हजरत उस्मान हैरी, न चेहरे पे शिकन न दिल पे। वापस जाने लगे तो उसने आगे जाके हाथ बांध दिए, कहने लगा बाबा मैं तेरा सब्र आजमा रहा था, यार तू तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़े तेरे इखलाक है, तो हो सकता है मेरी तरह के होते तो तन जाते। कहते बिल्कुल, यहाँ तो लोगों में हाल ही कोई नहीं, मैं सबसे ज्यादा बाइखलाक हूँ। लेकिन हजरत उस्मान हैरी ने बड़ा ही अजीब जवाब दिया। फरमाने लगे मुझे चढ़ा ना, मेरी तारीफ ना कर, ये जो अखलाक तू मेरा बता रहा है ये तो मेरे शहर के कुत्तों में भी पाया जाता है। जब उन्हें बुलाओ आ जाते हैं, जब धुतकार दो चले जाते। राती जागे शेख सदावे, रात नु जाग दे कुत्ते, तैथू उत्ते ओ मालक दा दर मूल नहीं छड़ दे, पावे मारो 100 जुत्ते। कितना मारते हो, बोरी में डाल के छोड़ आते हो, पर कुत्ता वापस आ जाता है। कहता है मैं क्या करूं, मैं तेरा वफादार जो हुआ। राती जागे ते शेख सदावे, रात नु जाग दे कुत्ते, तैथू उत्ते मालक दा दर मूल नहीं छड़ दे, भावे मारो 100 जुत्ते। ते तैथू उत्ते रुखा सुखा खा, दिने जा रुखां विच सुते। तैथू उत्ते एक बुरकी दा कदर पछानन, भावे मालक होवन सुते। ते तैथू उत्ते उठ बुलिया, चल यार मना लै, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुलिया चल यार मना लै, नहीं ते बाजी लै गए। अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हारी क्वालिटी चेक करनी है कि तुम्हारा अच्छा अमल, किस बंदे का अमल ज्यादा अच्छा है। इसलिए तुम्हें हमारी तरबियत रुक जाती है। हम जहां होते हैं हम समझ लेते हैं कि भाई मैं अब्बा जी की खिदमत करता तो हूँ, अब्बा जी ने कहा तो है कल एक बंदे से कि मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, बस ठीक हो गया। मैंने हज कराया अपने अब्बा जी को, तो मुझसे ज्यादा भी को वली अल्लाह हो सकता है। ओ भाई ठहर जा, रुक जा। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स ने कहा था हुजूर कंधों पे बिठा के और नंगे पांव गर्म रेत पे चल के वालिद अम्मा को हज कराया है, तो या रसूलल्लाह हक अदा हो गया। नबी पाक ने फरमाया नहीं, तेरी माँ को तेरी पैदाइश के वक्त जो दर्दें हुई थी, अभी एक दर्द का भी हक अदा नहीं हुआ। तो यहाँ तो लोग बन के बैठ गए, हमारी तरबियत रुक गई। बड़े सारे लोग लिबाते ओढ़ लिए, रंग रूप बन गए, लोगों ने हमें अच्छा कहना शुरू कर दिया। अंदर के बुत हैं कि टूटते ही नहीं, अंदर की मैल है कि उतरती नहीं। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी आदत को सही करना। और आदत से मुराद ये नहीं कि रोटी थोड़ी खानी शुरू कर देना अच्छी आदत है, ये भी अच्छी है। आदत से मुराद ये है कि तेरी सोच बदल जाए, तेरे अंदर से हसद निकले, बुग़्ज़ निकले, अदावत निकले, अल्लाह पे भरोसा शुरू कर दे। तू थोड़े रिस्क पे राजी रहना शुरू कर दे, तेरे अंदर से जल्दबाजी चली जाए, तू किसी के बारे में बुरा सोचना या किसी का बुरा सोचना छोड़ दे, फिर तेरी आदतें संवर गई। अगर इंसान उसकी सारी उम्मीदें दुनियादारों से लगी हो, सारी, रब करीम पर उसका कोई तवक्कुल ही ना हो, वो सारा दिन सियासत करता फिरे, इसको भी राजी कर लूं, उसको भी अपने पीछे लगा लूं, इस बंदे के भी किसी तरीके से सेट कर लूं, सारा दिन यही गुजार दे, तो फिर उसकी आदतें बिगड़ी हुई हैं। मुसलमान की सबसे बेहतरीन आदत ये होती है कि उसका भरोसा अपने रब करीम पे होता है, वो दाएं बाएं नहीं देखता, अल्लाह पे भरोसा सीधा। और क्या खूबसूरत लफ्ज़ हैं हदीस तिरमिज़ी के, हज़रत अबू हुरैरा
रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पे भरोसा करोगे तो अल्लाह तुम्हें उसी तरह रिस्क अता फरमाएगा जैसे परिंदों को अता करता है। जैसे अल्लाह, परिंदे सवेरे निकलते हैं तो उन्हें नहीं पता होता हमने किस फैक्ट्री में जाके मजदूरी करनी है। वो सुबह निकलते हैं तो उन्हें नहीं पता होता किस दफ्तर में बैठ के काम कर, बस अल्लाह के भरोसे पे निकल जाते हैं। जब शाम को वापस लौटते हैं तो अल्लाह उन्हें पेट भर के रोजी अता फरमाता है। लेकिन हमारा मसला यह है कि हमने बदला भी सारा खुद ही लेना है। सामने वाले को उसने अगर कोई ज्यादती कर दी तो बदला भी खुद लेना है। हमने अपने हक में लोगों को कायल भी खुद ही करना है। हमने सारे काम खुद करने। ओ भाई, कुछ काम तो अल्लाह पे छोड़ दे। अल्लाह तुझसे ज्यादा बेहतर करने वाला है। अल्लाह तुझसे छोड़, अल्लाह पे भरोसा कर। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम साहब एक तो आलिम बहुत बड़े थे, दरवेश भी बहुत बड़े थे, दूसरा अपने जमाने में मालदार भी बड़े थे। कपड़े का काम करते थे तो हजारों दिनार का कारोबार था आपका। जितना बंदा बड़ा होता है उसके प्यार करने वाले भी उतने ही होते हैं, तो हसद करने वाले भी उतने ही होते हैं। तो ये तो कोई बात ना हुई कि मीठा मीठा खा लिया और अगर किसी बंदे ने तनकीद कर दी तो बंदा परेशान हो गया। भाई उसी लेवल से लोग होना भी चाहिए। किसी के पास नेमत होती है तो कोई हसद करता है ना, माज़अल्लाह, ऐसे थोड़ी करता है कोई। तो इमाम साहब के, इधर देखना, मेरी बात पे गौर करना, इमाम साहब के वालिद साहब इंतकाल कर गए, बड़ा सारा आदमी। इमाम साहब 2-3 दिन बैठे, फिर आप बाहर निकले चौक में। एक मुखालिफ था आपका, सारा कूफा जानता था मुखालिफ है। उसने भरे बाजार में इमाम साहब से कहा वो हनीफा, सुना तेरे अब्बा जी फौत हो गए? फरमाया हाँ। कहने लगा अपनी अम्मा का निकाह मेरे साथ कर दो। बड़ी सख्त बात है ना, लेकिन शरई तौर पे गलत नहीं है। किसी को पैगामे निकाह देना बुरा, अपनी अम्मा का निकाह। इमाम साहब कहते हैं मेरा दिल टूट गया। मैं चाहता तो मैं उसके मुंह पे थप्पड़ मारता, उसके दांत तोड़ देता। मेरे मुखालिफ सारे तैयार बैठे थे, लेकिन आप फरमाते मैंने अपने इखलाक को, अपनी आदत को शरीयत के ताबे किया और मैंने उसको कहा भाई मेरी अम्मा आकिला बालिगा है, जरा इद्दत गुजरती है तो मैं बात करूंगा, अगर तेरे साथ निकाह करना चाहेगी तो मुझे कोई एतराज नहीं। इमाम साहब कहते मैं ये कह के जरा आगे गया, वो बंदा धड़ाम से जमीन पे गिरा, हार्ट अटैक हुआ और उसकी रूह परवाज कर गई। लोग कहने लगे दिल को पकड़ के गिरा है। लोग इमाम साहब के पास है, हुजूर इसे क्या हुआ? तो इमाम साहब फरमाने लगे इसे कुछ भी नहीं हुआ, इसने समझा था अबू हनीफा लवारस है, इसने समझा था लवारस है। मैं लवारस नहीं, मैंने तो सब कुछ अपने रब पे छोड़ दिया था। फरमाया मैंने अल्लाह पे छोड़ा है और अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। फरमाया इससे कुछ भी नहीं हुआ। अबू हनीफा के सब्र ने इसकी जान ले ली। अबू हनीफ, इमाम हसन को जहर दे दिया किसी ने, इमाम हसन। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे भाईजान आपको किसने जहर दिया है? तो इमाम हसन फरमाने लगे हुसैन अगर जिस पर मुझे शक है वो नहीं है तो मैं तुम्हें किसी बेगुनाह का नाम क्यों बताऊं, और अगर वही है जिस पर मुझे शक है वही है तो फिर हुसैन फिर भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं अपने रब पे छोड़ूंगा, मेरा अल्लाह बेहतरीन बदला लेने वाला है। फिर भी मैं अल्लाह, यार कुछ चीजें छोड़ दें, अल्लाह पे छोड़ दें। आप यकीन करें इज्जतें भी अल्लाह ही देता है, इज्जतें भी, रिज़्क भी अल्लाह ही देता है, नवाजने वाला भी अल्लाह ही है। छोड़ दें, आपने जरूर बदला लेना है, कुछ तो छोड़े ना रब करीम पे, कुछ तो ख्याल फर्म छोड़े कुछ देर के लिए। मैं एक चौधरी साहब मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे एक दिन कहा कि हाजी साहब आप रोज पंचायत में फैसला करते हैं, मुश्किल फैसला कौन सा होता है, मुश्किल फैसला कौन सा? तो कहने लगे जो बंदा आके कहता है ना चौधरी साहब जिंज दिल जे कर छड्डो मैं तुहाडी नहीं मोड़ सकता, कहते ओदा फैसला बड़ा औखा हो जाता मेरे वास्ते, उसने तो मुझ पे ही डाल दिया है। कुछ कहते नहीं चल सब इस तरह करके करना, ये मेरे हक में करना। कुछ कहते हैं जिस तरह दिल करे कर दे, आपकी नहीं मैं बात टाल सकता, कहते उस बंदे का फैसला मुश्किल हो जाता है। उन्होंने मुझे बात सुनाई तो मैं सोच में पड़ गया।
کہنے لگے پیر صاحب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بندہ بندے پہ ڈال دے، بندہ بندے پہ ڈال دے تو بندہ اس کا نقصان نہیں کرتا، تو اگر بندہ اللہ پہ ڈال دے، اگر کہ یا اللہ جس طرح تیرا دل کرے میرے ساتھ کر. لیکن ہمارے ہاں ہماری عادت یہ کہ ہم نہیں ختم کرنا ہے ساری مصیبت گلے. ہر بندے سے پوچھو کیا حال ہے، کہتا بڑا پریشان ہوں. تو ٹھیک ہے، اگر پریشانی سے مسئلے حل ہوتے ہیں تو رہا کرو 24 گھنٹے پریشان، کھل کے پریشان لو، وہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا نا. حضرت امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے جو بندہ پریشانی لیتا ہے نا وہ تو ناشکری کرتا ہے. کئی دفعہ رب کریم اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے اچھا تو نے کرنا ہے جا کر لے، اتنی ٹینشن کس بات کی ہے. توکل. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تو میرا دل کیا کہ میں نے یہ اعتکاف بستام میں نہیں کرنا. یہ بہت زیادہ ہاتھ چومنے والے ہوتے ہیں، یہ بھی مسئلہ کرتے ہیں. کئی دفعہ بندے کا دل کرتا ہے بندہ تنہائی میں کبھی کبھی اللہ اللہ کرے، کوئی نہ جاننے والا ہو. فرماتے سارا شہر میرے پیچھے بھاگا کرتا تھا، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. میرا دل کرتا تھا مجھے کچھ 4 دن اکیلے ملے، میں ذرا اپنے رب کے ساتھ تنہائی کروں، میں اپنے رب کو مناؤں. وقت نہیں ملتا تھا. کہتے سوچا یہ والا اعتکاف بستام نہیں کرنا، باہر جا کے کرنا ہے. اٹھ بلیا چل اوتھے وسیے، او جتھے وس دے نہیں سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے. اٹھ بلیا چل اوتھے وسیے جتھے وس دے نہیں سارے ینے. کہتے میرا بھی ارادہ بن گیا کہ چھوڑوں بستام. تو میں بستام سے دور چلا گیا جہاں لوگ مجھے جانتے نہیں تھے. ایک مسجد میں اعتکاف کا پروگرام ہے، یکم رمضان ہی وہاں چلا گیا. کہتے پہلے دن گیا تو نمازی پوچھنے لگے بابا کدھر سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں دور سے آیا ہوں، یہاں اعتکاف کرنا ہے. کہنے لگے روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ میں نے کہا اللہ دے گا. کہنے لگے اللہ تو دے گا پر کس طرح؟ تو میں نے کہا بھائی اللہ وسیلے کو پسند کرتا ہے پر وسیلے کا محتاج تو نہیں نا. وہ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہوگا، تو وہ دے دے گا. کہنے لگے جی وہ تو ٹھیک ہے پر کیسے؟ کہتے ہیں میں 2 کو بھی سمجھایا. اگلا دن آیا تو 2 نمازی اور پوچھنے لگ گئے بابا روٹی کہاں سے کھاتے ہو؟ تو میں نے کہا اللہ دیتا ہے. کہتے پر کیسے؟ اگلے دن پھر کہتے میں تنگ آ گیا نمازیوں سے. یہ رمضان شریف سے پہلے نا مجھے ایک نوجوان نے روکا دیا جمعے میں. رمضان سے پہلے جو جمعہ تھا نا مجھے ایک بچے نے روکا دیا. کہنے لگا حضرت جی یہ پکے نمازیوں سے ذرا گزارش کرنا کہ کچوں کو بھی مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں. یہ ذرا پکے نمازیوں سے گزارش کرنا، یہ ہمیں گھورتے ہیں. کہنے نے آگے نے فصلی بٹیرے، تو مہربانی کریں ان سے کہیں کہ ہو سکتا ہے ہم پکے ہو ہی جائیں تو کوئی ایک پنکھے کے نیچے ہمیں بھی کھڑا ہونے کا موقع دے دیں. چلو کوئی حرج نہیں. تو ہم نے تو لوگوں کو لانا ہے، کوئی نکالنا تھوڑا ہے. تو ویسے بھی کسی بندے نے کوئی صف الاٹ نہیں کرائی، کوئی نہیں الاٹ کرائی. یہ اللہ کا گھر ہے، جہاں جو پہلے آئے گا وہ آ کے وہاں بیٹھ جائے گا. قبضہ نہیں جمائے، رومال رکھ کے قبضہ نہ کرے. مہربانی فرمائیں، غور فرمائیں، یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا ہی رہے گا. عام دام برسر مطلب. تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں وہ سارے نا کہاں سے کھاؤ گے؟ میں تنگ آ گیا. کہتے مسجد کے ساتھ یہودیوں کا گھر تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی خاتون کام کرنے والی کا ہے؟ فرماتے میں نے انہیں نا پیسے دیے. میں نے کہا مجھے ذبیحہ نہیں تمہارا چاہیے، بس 2 روٹیاں سویرے 2 شام، یہ پیسے لے لو. انہوں نے کہا بابا مل جائیں گی. ان کا تندور تھا. کہتے میں نے لوگوں سے کہا کہ اس گھر میں مسلمان بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں. بہرحال میں نے گھر والوں سے طے کر لیا ہے مجھے 2 روٹیاں سویرے 2 شام مل جائیں گی. کہتے اب میرا دل کرتا تھا کوئی ایک نمازی پوچھے تو میں ذرا سب کو بتا دوں کہ بندوبست ہو گیا ہے. کہتے عصر کی نماز پڑھی تو ایک نمازی نے پوچھ لیا بابا روٹی؟ تو کہتے میں نے زور سے کہا. میں نے کہا بھی یہ پڑوسیوں کو میں نے کہہ دیا ہے، یہ پڑوسیوں کو جو یہودیوں کے مکان میں ہیں ان کو میں نے کہہ دیا ہے، پیسے دے دیے، 2 روٹیاں سویرے 2 شام مجھے آ جائیں. کہتے اب نمازیوں نے پوچھنا چھوڑ دیا. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے فجر کی نماز پڑھ کے نا تو میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا آؤ سارے دوبارہ سے کلمہ پڑھیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آؤ پھر کلمہ پڑھیں، آ جاؤ. کہنے لگے بابا کیوں؟ تو میں نے کہا یار میں تمہیں کہتا تھا اللہ دے گا تو تم کہتے تھے کیسے. اور میں نے کہا ہے کہ یہ یہودیوں کی بلڈنگ سے روٹیاں آئیں گی تو تم نے مان لیا ہے
तुम्हारा तो एतकाद दुनियादारों पे ज्यादा है, रब करीम पे कमजोर हो गया। अब यकीन करें, हर आदमी कहता है धोखे से अमीर होना है, जेब काट के अमीर होना है। खुदारा अपना तवक्कुल अपने रब पे मजबूत करें। याद रख लें, दुनिया में जितने लोग आगे गए हैं वो अपनी सिर्फ मेहनत से नहीं गए। मेहनत उन्होंने की है, मेहनत जरूर की है, लेकिन दुनिया में जो भी कहीं पहुंचा है सिर्फ रब करीम के फजल की बरकत से पहुंचा है। तो उस फजल को क्यों नहीं तलाश करते, उस करम के पीछे क्यों नहीं भागते। एक तो अपनी ये आदत बनाएं, अल्लाह पे भरोसा। दूसरा, सब्र और शुक्र का माहौल पैदा करें। सब्र और शुक्र का। अल्लाह हकीम है, अल्लाह अलीम है। जो मेरे हक में बेहतर था रब करीम ने मुझे दे दिया है, जो आपके हक में बेहतर था अल्लाह ने आपको अता कर दिया है। अपनी मर्जी ना करें। रिजल्ट हम ना रिजल्ट मर्जी का मांगते हैं, मुझे मेरी मर्जी की जिंदगी मिले। क्यों भाई, तेरी मर्जी की क्यों मिले? तुझे क्या पता तुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये तो तेरे रब को पता है। सब्र और शुक्र का माहौल। हमें पूछता है ना कि बंदा तबीयत कैसी है, तो 360 हड्डियां होती हैं वजूद में। किसी ने पूछा हाल क्या है, तो कहता है ये घुटने में बड़ी दर्द है। ओ भाई, बाकी 359 सही है, उनका भी तो जिक्र करता। एक का ही जिक्र करना जिसमें दर्द हो रही है, एक का ही। तबीयत कैसी है, कहते सारा कुछ सही है। छोटा बेटा कहीं काम पे लग जाए ना तो मैं बच जाऊं। ओ खुदा के बंदे, बाकी सारे लगे हुए हैं ना, उनका भी तो जिक्र करना। बाकी सारे मसले एक का ही सिर्फ। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा, आपके पड़ोस में एक नौजवान रहता था। हमारे देहाती माहौल के अंदर हमें पता होता है कि ये बच्चा कौन है, किसका है, बल्कि हमें ये भी पता होता है कि इसकी नानी कौन है और दादा कौन है, पता होता है। पड़ोस में रहता था, 35-40 साल उसकी उम्र थी। एक दिन वो नौजवान बाहर आया तो उसने माथे पे पट्टी बांधी हुई थी। जनाब राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा फरमाने लगी, बेटे क्या बात है, माथे पट्टी बांधी है? कहने लगा, अम्मा जी सर में दर्द हो रहा है। फरमाने लगे, कितनी उम्र हो गई? कहने लगा 35-40 साल। कहा पहले तो नहीं कभी दर्द हुई? कहा नहीं अम्मा जी, आज तक कहीं दर्द नहीं हुई, पहले दिन हुई है। अम्मा ने बहुत बड़ा जुमला कहा। कहने लगी, बेटे अल्लाह ने तुम्हें 40 साल सेहत दी, तुमने एक दिन भी शुक्र की पट्टी नहीं बांधी, और आज पहले दिन दर्द हुआ है तो शिकवे की पट्टी बांध ली है, और लोगों को दिखाते फिरते हो कि मुझे दर्द है। तुमने शुक्र की पट्टी एक दिन भी नहीं बांधी। शुक्र की पट्टी कब बांधेंगे? कब कहेंगे कि या अल्लाह तेरा बड़ा करम? कब कहेंगे? न सब्र है, न शुक्र है, न हौसला है। बस हर आदमी तकलीफ में है, हर आदमी आजमाइश में है, उसे बस सामने वाला सुखी नजर आ रहा है, वो अपने आप को सख्त अजियत में महसूस करता है। अच्छी आदत में से एक बहुत बड़ी आदत सब्र शुक्र की आदत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे तो एक शख्स को जमीन पर लेटे हुए देखा जो दोनों आंखों से अंदर था, हाथ भी कटे हुए थे, पैर भी कटे हुए थे। आप जरा उसकी जगह पे बैठ के सोचे जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आंखें भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं, पैर भी, लेकिन वो शख्स जमीन पे लेटा है तो क्या पता जुबान से क्या कह रहा है? कह रहा है या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, या अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र शुक्र कह रहे। लोग जमा हो गए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, क्या हुआ? अर्ज की हुजूर ये शुक्र शुक्र कर रहा है। हम पूछना चाह रहे हैं किस नेमत पे शुक्र कर रहा है? तो जनाब ईसा ने उसके कान के करीब अपना मुंह किया, फरमाने लगे, भाई लोग परेशान हैं, इनको बताओ। आंखें भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं, पैर भी कोई नहीं, शुक्र शुक्र पुकार रहे हो। तो उस शख्स का चेहरा खिल उठा, कहने लगा जनाब ईसा से, हुजूर कोई बात नहीं, आंखें नहीं तो हाथ नहीं तो पैर नहीं, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उसने मुझे ईमान की दौलत तो अता फरमाई हुई है। हुजूर मैं शुक्र ना करूं? अल्लाह के नबी जनाब ईसा मेरे सराहने खड़े हैं, शुक्र वाली बात नहीं। मैं शुक्र ना अदा करूं, मुझसे बड़ा भी कोई खुश नसीब होगा। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के छोटे साहिबजादे थे मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब रहमतुल्लाह। उनके सामने एक शख्स ने कह दिया, मुसलमान बड़े बदनसीब हैं, हर जगह परेशान है। कहने लगे, चुप कर, जो मुसलमान होता है वही तो खुश नसीब होता है। मुसलमान कोई बदनसीब कह दिया है? कुन तुम खैरा उम्मतिन, अल्लाह फरमाता है तुम बेहतरीन उम्मत हो। खुश नसीब है जो मुसलमान है। तुमने कैसे कह दिया मुसलमान बदनसीब? खुश नसीब वो होता है जिसको अल्लाह अपने महबूब के कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाता है। तो मेरे भाई सब्र और शुक्र की, और
चौथी आदत, नेकियां छुपाने की आदत बनाएं। नेकियों का इजहार छोड़ दें। नेकियां बंदे का अल्लाह से राज होती हैं। इस राज को लोगों पर आश्कार न करें, नेकियां छुपाया करें। नेकी बताने की चीज नहीं होती, नेकी छुपाने की चीज होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएंगे। उनकी ख्वाहिश होगी अल्लाह उन्हें उसकी जज़ा अता करे। तो रब फरमाएगा, जाओ उन्हीं से जाके जज़ा लो जिनको दिखाने के लिए तुम ये काम करते थे, मैं तुम्हें जज़ा नहीं दूंगा। भाई नेकियां छुपाएं, कुछ काम ऐसे करें। मुझे बड़ी बात याद है, एक सफ़र में, हरमैन शरीफैन के एक सफ़र में मक्के से मदीने जा रहे थे हम, तो एक होटल पे खड़े होके खाना खाया, तो खाना भी बड़ा ही पसंद आया, तो कोई ज़्यादा खाया। हम देखे ना, वो शहर के बच्चे तिक्के मिल जाएं तो ज़रा ज़्यादा रोटी खा जाते हैं, तो ऐसी जेडे पेंडू हैं सानू कदी साग लभ जाए तो असी ज़्यादा खा ली दी है, साग बना हुआ है, मर्जी की चीज़ आई हुई है। खाना भी बड़ा पसंद आया तो एक रोटी ज़्यादा खाई। खाना ख़त्म करने के बाद काउंटर पे एक दोस्त हम में से गया, का पैसे ले लो। कहने लगा, तुम्हारे हो गए पैसे। तो हमने कभी, हम तो सारे यहाँ बैठे हैं, कैसे हो गए? कहने लगे, सवेरे एक शख्स आता है और आके कहता है, ये पैसे ले लो, ना सदका है, ना ज़कात है, ना खैरात है, ये एक तोहफा है उस बंदे को खाना खिलाना जो मदीना शरीफ हाज़री देने जा रहा हो, उसको मेरी तरफ से खाना खिलाओ, मैं मुस्तफ़ा करीम के मेहमानों का मेज़बान बनना चाहता हूँ। हमने जोर लगाया कि यार तुम पैसे लो, किसी और को खिला देना। कहने लगे, नहीं साहब, हमने वादा किया हुआ है कि जो भी मदीने जा रहा होगा खिलाएंगे। तो मैंने कहा, उस शेख का नाम बताओ, मैं उसके लिए दुआ करना चाहता हूँ, बंदा अच्छा लगा है। तो होटल वाला पाकिस्तानी था, कहने लगा, मुझे अल्लाह की कसम मुझे खुद नहीं उसका नाम आता। कई दफ़ा पूछा है नाम बता, तो कहने लगा, नाम बताने होते तो फिर मैं ये काम करता। ओ भाई, नेकी वो होती है कि जो छुपी हुई होती है, जिसको जाहिर कर दिया नेकी रही। 500 रुपया मस्जिद दिया और कारी साहब को कहा कि मोहम्मद बशीर का ऐलान भी कर दो। कारी साहब ने ऐलान किया तो कहना, तुसा सही ना ही नहीं लिया, वो भावें दखन पहाड़ वाला बशीर समझ लैन, दसिया ही नहीं, ड्रेस ही नहीं सही बताया, वो समझेंगे पता नहीं बशीर वो चौथे महल्ले का है। सही नाम लें, असली वाला। बल्कि मैं तो अक्सर कहता हूँ, ख़त्म शरीफ पे जाते हैं ना हम, हमारे यहाँ साले सवाब की महफिल होती। एक जगह मैं कुल शरीफ के ख़त्म पे गया तो मुझे उन्होंने ना, कल फौतगी हुई तो आज कुरान पाक पढ़ के दिए, 10,000 कुरान पाक। मेरी अकल नहीं मानती थी कि 10,000 एक रात में कैसे इन्होंने पढ़ लिया, इकट्ठा कर लिया। चलो थोड़ी सी तबीयत में बात आई तो मैंने ख़त्म शरीफ पढ़ा। मैंने कहा, या अल्लाह, जो पढ़ाया है, जो पढ़ा है इसकी रूह को। तो मुझे कहने लगे, आपने बताया ही नहीं 10,000 कुरान पाक पढ़ा है। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा, किसको बताना था? जो ख़त्म पे ऐलान होता है कि 20,000 कुरान पाक, एक उम्रे का सवाब, 5,000 रुपया मसीते भी देता है, किसको बता रहे हो? सवाब किसने देना है? उसको बताने की ज़रूरत है कि या अल्लाह हमने कितना पढ़ा है? क्या चक्कर है, किधर लोग उलझ गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, रियाकार तो मरने के बाद भी रियाकारी नहीं छोड़ता। बहुत बड़ी बुरी आदत उसे पड़ जाती है, हर जगह अपनी तारीफ मांगता है, हर जगह तारीफ मांगता है, हर जगह, मरने के बाद भी नहीं छोड़ता। तो कहा, हुजूर मरने के बाद कैसे रियाकारी होती है? फरमाते, मरते वक्त भी इसकी ख्वाहिश होती है मेरे जनाजे में ज्यादा लोग आने चाहिए, उस वक्त भी इसकी यही ख्वाहिश। निकले इस चीज से बाहर। आप यकीन करें, तंग हो जाएगी जिंदगी अगर ये आदत पड़ जाए ना, दिखावा करने की जिंदगी तंग हो जाएगी। सारा दिन सोचोगे कोई तारीफ करे, कोई कह दे कि क्या बात, इससे बाहर आ जाए, बड़ी ठंडी जिंदगी अल्लाह नसीब करेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह अक्सर कूफे जाया करते थे, इमाम आजम से मिलने, कुछ और लोगों से मिलते थे। रस्ते में एक सराय था, आजकल होटल होते हैं ना, उस जमाने में मस्जिदों के साथ सराय, मेहमान खाने बनाए जाते थे, मुसाफिर ठहरा करते थे। हजरत भी वहां ठहरते थे। एक गरीब नौजवान आपकी खिदमत करता था, बड़ी खिदमत करता था, वो आपकी बड़ी नौकरी करता था, आपको भी वो अच्छा लगता था, प्यार करते थे। एक दिन आप आए सफर में तो पूछा, वो नौजवान गैर हाजिर है। फरमाया क्या हुआ? कहने लगे, हुजूर गरीब आदमी था, उस पर कर्जा चढ़ गया। तो
लौटा नहीं पा रहा था तो किसी ने मुकदमा कर दिया, तो कोतवाले शहर गिरफ्तार करके ले गया, यूं समझे SHO पकड़ के ले गया। तो अब तो बड़ी तकलीफ में है। वो नौजवान भी कहता है कि मैं बड़ी अजियत में था, कोई नहीं था मुझे छुड़वाने वाला। मैंने दोस्तों को पैगाम दिए, रिश्तेदारों को कहा, कोई छुड़वाने वाला नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक को जब पता चला तो आप गए, कोतवाल को कोने में ले गए, फरमाने लगे अगर मैं उसका कर्जा दे दूं तो छोड़ दोगे? तो छोड़ देंगे। फरमाने लगे एक शर्त है, उसे बताना ना कि उसका कर्जा किसने दिया। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं समुंदर उछाल देता है, बताना ना। कहते हैं हुजूर नहीं बताऊंगा। तो कोतवाल कहने लगा हुजूर आपकी तो रोज मैं देखता हूं उससे मुलाकात, आए दिन आप आए होते हैं। तो फरमाने लगे इसीलिए तो कह रहा हूं। वो फिर मेरे सामने नजरें झुका के रहेगा, वो शर्मसार होगा, वो सोचेगा कि इन्होंने एहसान किया है। तो मैं उसे शर्मसार करने के लिए नेकी तो नहीं ना कर रहा, मैं तो अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ। तो पैसे दे दिए, नौजवान आज़ाद हो गया। पूछा मेरा कर्जा किसने दिया है? कब जिसने दिया है वो कह गया है, किसी को बताना नहीं। वो नौजवान सारी जिंदगी तलाश करता रहा कि बंदा मिल जाए, मैं उसका शुक्रिया अदा करूं। इतने पैसे थे कि मैं तो शायद उम्र भर ना बाहर आ सकता। कौन है जो इतनी नेकी कर गया? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक से जब भी मुलाकात होती तो कहता बाबा जी नेक आप भी हैं, अल्लामा साहब आप भी हैं, पीर साहब आप भी हैं, पर असल नेक तो वो था ना जो मेरे पैसे दे के गया है। तो बाबा जी फरमाते दुआ कर अल्लाह मुझे भी कोई ऐसी नेकी की तौफीक दे दे। वक्त गुजर गया, उम्र बीत गई, वो नौजवान बुढ़ापे को आ गया। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक बीमार हो गए, कमजोर हो गए, घर में रहने लगे। बिल आखिर पैगामे अजल आ गया, पैगामे अजल। उधर वो शख्स कहता है ढूंढते ढूंढते अल्लाह की कुदरत देखो कि उसी सुबह मुझे वो कोतवाल जो पता नहीं बदल के कहाँ चला गया था मुझे मिल गया। मैं जाके उसके पैरों में बैठ गया। मैंने कहा तुझे अल्लाह की कसम यार मुझे वो मेरे मोहसन का पता ही बता दे, मैं जाने से पहले शुक्रिया के लफ्ज ही बोल दूं। मेरी जिंदगी का रुमा रुमा लम्हा लम्हा उसके सानों तले दब गया है। इतनी बड़ी रकम बगैर वजह के मेरे नाम पे कुर्बान कर गया, बता दो। तो कोतवाल कहने लगा तूने बड़े वसीले वास्ते दिए, बता देता हूं, पर यार तू तो रोज उनके साथ बैठा होता है, रोज होता है तू उनके साथ, तुझे पता ही नहीं। कहा कौन है? कहने लगे हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक है। तो शख्स कहता है यार वो, मैं तो उन्हें रोज कहता रहा, वही थे। तो मैं दौड़ा, मैं पहुंचा उनके घर, लेकिन अल्लाह की बेनियाजी देखो। जैसे मैं दरवाजे पे पहुंचा तो कुछ लोग अंदर जा रहे थे, कुछ बाहर आ रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे जनाब अब्दुल्ला बिन मुबारक विसाल कर गए। ये दुनिया जियारत करने आई हुई है, जियारत करने। अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। ते जदों ना मैं दिसिया मैखारां नूं मैखाने विच जाम टुट जाणगे, मैखाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे, गलियां दा याना ते सियाना मैनू रोवेगा। घर इतनी दुनिया तड़प रही है हजरत के लिए, इतनी मखलूक जमा है। तो मैं भी अंदर गया तो मैंने उस नूरानी चेहरे वाले शख्स को चारपाई पे लेटे देखा। तो मैंने जाके कदमों पे सर रखा और पैर चूम के कहा बाबा मुझे तेरी नमाजों का नहीं पता, तेरे हज ज़कातें सदकात कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जो नेकी तूने मेरे साथ की है मुझे उम्मीद है रब इसकी बरकत से ही तुझे जन्नत अता कर देगा। वो क्या नेकी हुई जिसका शोर ही बड़ा है? 500 रुपया 27वीं को कारी साहब को दिया और नोट खोल के दिया। ये कौन सी नेकी है? किसी यतीम के सर पे हाथ रखा तो सारे जमाने को बताया कि रोटी मैं देता हूं ना। अच्छी आदत यह है कि तू नेकियां छुपाने लग जाए। अय्युकुम अहसनु अमला, तेरे अमल की क्वालिटी किस तरह की है, किस तरह का तेरा अमल है, उसका मेयार क्या है तेरे अमल का। क्या तू लंबी नमाज पढ़ता है पर दिखाने के लिए? क्या तू बहुत लंबे सजदे करता है पर इसलिए कि लोग समझें कि बड़ा नेक है? क्वालिटी बता, तेरे अमल की क्वालिटी क्या है। तो अमल करें क्वालिटी वाला, खूबसूरत, बेहतरीन, आला दर्जे का अमल। तवक्कुल आला अमल है, सबर शुक्र आला अमल है, हसद बुग़्ज़ कीने अदावत से बचना आला अमल। और नेकी को छुपाना, उससे नेकी मजबूत हो जाती है, उससे नेकी ताकतवर हो जाती है, उससे नेकी में वजन पैदा होता है। अपने आप पर
मेहनत जारी रखें। कहीं भी खड़े होकर ये ना सोचें कि अब मैं बिल्कुल परहेजगार हो गया हूँ और मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। ना ना, अमल जारी रखे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हज़रत उमर के साहिबजादे, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया राजुलुन सालिहुन, फरमाया अब्दुल्ला नेक आदमी है। हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला, वो बस नहीं कर दी उन्होंने, उनकी हमशीरा थी महबूब के घर जनाब अफसा रदी अल्लाह ताला, हज़रत उमर की साहिबजादी। तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर अपनी हमशीरा से कहने लगे नबी पाक से पूछ के बताना मेरे बारे में क्या ख्याल है, मैं किस तरह का हूँ। तो उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह मेरे भाई के बारे में क्या ख्याल है। तो महबूब फरमाने लगे बंदा तो अच्छा है, लेकिन मैंने सुना है इशा पढ़ के सोता है तो फजर तक सोया ही रहता है, उसे चाहिए उठ के नफल भी पढ़ा करे, तहज्जुद भी पढ़ा करे, वो सोया ही रहता है फजर तक। अब देखे ना, हुक्म तो यही है ना कि इशा जमात से पढ़ो और फिर फजर पढ़ो, लेकिन महबूब ने फरमाया यहाँ रोक ना जाए, अपने अमल को आगे बढ़ाए। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे मैं वादा करता हूँ आज के बाद तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करूँगा। अपने आप को रोको ना, अपने ऊपर अच्छी आदत, अच्छी खसलतें, अच्छे नजरियात, मीठी सोच, अच्छा जहन, खूबसूरत तबीयत, मनफी सोच से दूर भागे। कतई तौर पर किसी शख्स को कभी भी अपने से किसी भी लिहाज से उसे अपने से कमतर ना समझे, एहसास अखुव्वत अपनी तबीयत में पैदा रखे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ जो कुछ मैंने अर्ज़ किया अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, और जहाँ हम भूल गए अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।